کھاتا نہیں ہے؟ اللہ تو سب کو دیتا ہے، اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ تو سمپورن جگت کو پیدا کیا ہے، سمپورن مانوگت کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، تو اللہ کو کب قرض کی ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کو وہ قرض کی ضرورت نہیں ہے جو آپ اسے انڈائریکٹ دیں، ڈائریکٹ دیں، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ دیں، جسے ہم لوگ ایک دوسرے آدمی کو دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے میرے صحابی، آئے میرے دوست، آپ جس قرض کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا نہیں ہے۔ قرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کرو، اللہ کے لیے مسجد بناؤ، یتیم بچے ہیں ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، یتیم بچوں کی پرورش کرو، یتیم بچوں کو کھلاؤ، مسجدیں بن رہی ہوں اس میں آپ ڈونیٹ کرو، مدرسے چالو ہے، مولانا عثمان مدنی کا مدرسہ ہے آپ اس میں ڈونیٹ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا ہے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ وہیں پر حضرت ابو الدرداء نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کا ایک صحابی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کو قرض دو گا اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مدینے کے اوپری والے باغ، یعنی مدینے میں میرا 2 باغ ہے، ایک اوپری والے، ایک نیچے میں، ایک اوپر میں، اے اللہ کے رسول، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں باغ قرض حسنہ دینے کے لیے تیار، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دوں گا۔ دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے میرے بھائی، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں باغ قرض حسنہ دے دو گے، اللہ کو قرض دو گے، تو پھر تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کی پرورش کیسے کرو گے، اس کو کیسے پالو گے؟ میرے بھائیوں، وہ صحابی کہتے ہیں، ابو الدرداء کہتے ہیں، آئے اللہ کے رسول، جنگلوں میں جاؤں گا، لکڑیاں چون لوں گا، لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کر کے میں اپنی بیوی بال بچوں کا پیٹ بھر لوں گا، آئے اللہ کے رسول، میں دونوں باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے میرے بھائی، ایک باغ اپنے پاس رکھو، دوسرا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ قرض اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قرض پسند ہے جو آپ کے دل کے قریب ہو، جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں، آئے اللہ کے رسول، مدینے کے اوپری والی باغ میں بہت زیادہ جایا کرتا ہوں، بہت زیادہ میں اس میں جایا کرتا ہوں، اپنا ٹائم صرف کرتا ہوں، آئے اللہ کے رسول، وہ باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیا ہوں۔ اب قرض دینے کے بعد اب وہاں سے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ جیسے اپنے گھر میں پہنچے، دیکھا دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، دروازہ لاک ہے، دروازہ بند ہے، بیوی بال بچے میرے گھر میں نہیں ہے۔ پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں گئی ہے، میرے بچے کہاں گئے ہیں؟ پڑوسیوں نے کہا، کیا ہے میرے بھائی، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے مدینے کے اوپری والے باغ میں گئے ہیں اپنے بچوں کا کھجور کھلانے کے لیے۔ اب حضرت ابو الدرداء وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگا کر مدینے کے اوپری والے باغ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں، آئے میری بیوی، آئے میرے بچے، جلدی اس باغ کو خالی کرو، یہ باغ میرا نہیں ہے، یہ باغ میرا نہیں ہے، یہ باغ کو خالی کرو، یہ باغ میرا نہیں ہے۔ بیوی چونک جاتی ہے کہ میرے سرتاج، آئے میرے شوہر، یہ باغ کس نے ہدیہ کر لیا ہے، کس نے قبضہ کر لیا ہے، کس نے غصب کر لیا ہے؟ آئے میرے شوہر، یہ تو میرا باغ ہے جس میں آج میں آئی ہوں اپنے بچوں کو لے کر کے۔ آئے میرے شوہر، کس نے ہدیہ لیا، کس نے قبضہ کر لیا ہے، کس نے غصب کر لیا ہے؟ شوہر کہتا ہے، ابو الدرداء کہتے ہیں، آئے میری بیوی، ریزن بعد میں پوچھنا، جب جلدی سے اپنے بچوں کو کھینچو اور اپنے باہر لے کر آؤ۔ میرے بھائیوں، بیوی اللہ والی تھی، جیسے ہی شوہر کا پرمیشن ملتا ہے اپنے بچوں کو کھینچ کر باہر نکال لیتی ہے۔ باہر نکالنے کے بعد مدینے کے اوپری والے باغ کے دروازے کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے شوہر، ریزن بتاؤ کہ یہ باغ کس نے ہدیہ لیا ہے، کس نے غصب کر لیا ہے، کس نے قبضہ کر لیا ہے؟ کہتا ہے، میری بیوی، یہ باغ کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے، کسی نے غصب نہیں کیا ہے۔ اے میری بیوی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر، کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو قرض دے گا اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ میرے بھائیوں، بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر، ایک ہی باغ دیا کہ دونوں باغ دے دیو؟ کہتا ہے، میری بیوی، ایک باغ دیا ہوں، ایک باغ۔
कहने लगी अच्छा, अरे दोनों बाग दे देते, ये हमारा पेट का मामला था, बच्चों का मामला था, घर बार का मामला था, तो मैं जंगल में जाती, लकड़ियाँ चुन कर लाती, बाजार में फरोख्त कर करके अपने बच्चों और अपने खुद का पेट भर लेती। अल्लाह मेरे शौहर, दोनों बाग तुमने क्यों नहीं दे दिया? कहता है मेरी बीवी, मैंने दोनों बाग देने की बात की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बाग अपने पास रखो, दूसरी बाग दे दो। तो मेरे भाइयों, ये थी औरतें। आज हमारे माँ और बहनों से चीख चीख कर कहा जाता है कि तुम नाक़िस हो, तुम्हारी अकल कमज़ोर है, आधे यानी मर्द के बिलमुकाबिल आधी है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा जहन्नमों के अंदर जलता हुआ देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, वहाँ नबी सईदना अल-खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अज़हा फितरिन इलल मुसल्ला फमर्रा अला निसा या मासर निसाई तसद्दक़ना फइन्नी उरीदुकुन अक्सर अहलिन नार। औरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत ज़्यादा जहन्नम के अंदर जलते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों ने सवाल किया, कुल्ला बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, औरतें आखिर जहन्नम के अंदर क्यों जल रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुकफिरन नान व तकफिरन अशीर, तुम अपने शौहरों की ज़्यादा नाफरमानी करती हो। मेरे भाइयों, वो थी औरतें, वो थी जन्नती औरतें जो एक बाग अगर शौहर दे देता है तो उसको सपोर्ट करती है कि दोनों बाग आपने क्यों नहीं दे दिया। मेरे भाइयों, मीडिया वालों, अगर तुम यहाँ हो तो मेरी बात पहुँचाओ मोदी और योगी तक, जिसको तुम टेररिस्ट के अंदर जोड़ते हो, जिसे दहशतगर्द कहते हो। अल्लाह के रसूल की एक बातें लोग उसके ऊपर आमन्ना और सदका कबूल कर लिया करते थे। तुम्हारी हज़ारों बातें हो जाती है, कभी तो 15 लाख हर अकाउंट में, कभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कभी तो फलां को बंद कर दो, कभी तो उसको गोली मारो, कभी तो बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला। ये तुम्हारी कौन सी दोगली और पॉलिसी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कि हुकूमत कैसे चलाई जाए, हजरत उमर फारूक से सीखो कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, कैसे चलाया जाता है हुकूमत। अल्लाह के रसूल से हजरत उमर फारूक से पूछो। आओ मैं बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी बनाया, आखिरी लीडर बनाया, तो सबसे पहले क्या कहा कि लोगों, मोहम्मद जाकर के लोगों से कह दो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। अशहदु अल्लाह के गवाही दे दे, शहादत की गवाही दे दे, वो कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इक़ामिस सलाह, नमाज पढ़िए, व इक़ामिस सलाह। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम का बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज़ व इक़ामिस सलाह, तीसरी चीज़ व इताई ज़कात, चौथी चीज़ वो तो सौम रमज़ान, पाँचवीं चीज़ मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आपके पास ताकत है तो ज़िंदगी में एक बार हज करना है। आइए महाभारत उठाइए, महाभारत के अंदर ये मंत्र आपको मिलेगा, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीज़ों का नाम है। पृथ्वी वस्तु पहली चीज़, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय, दूसरी चीज़, द्वितीय वस्तु साष्टांग तपदिया। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। चतुर्थ वस्तु धारी। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कतक दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बुनियाद इस्लाम वल खम्सिन, इस्लाम का बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़ एक अल्लाह की गवाही देना, दूसरी चीज़ नमाज पढ़ना, तीसरी चीज़ रोज़ा रखना, चौथी चीज़ दान और खैरात करना, और 5वीं चीज़ हज करना। यहाँ क्या कहा गया है? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीज़ों का नाम है। प्रथम वस्तु पहली चीज़ एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन। दूसरी चीज़ साष्टांग तपदिया। तीसरी चीज़ दानम दीक्षिता। चौथी चीज़ चतुर्थ वस्तुधारी। 5वीं चीज़ पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कतदिया। मेरे भाइयों, यह हदीस, हमारी यह हदीस तुम्हारे वेदों के अंदर मौजूद है। महाभारत खोलो, देख लो, ये मंत्र नुमाया तौर पर नजर आएगी। अभी भी लिखा हुआ है, आज भी उसको रिमूव नहीं किया गया है। प्रथमा दार का झुआ देव दिदियन मुझे तृतीयानन कोडलाकारम चतुर्थदेव चंद्र का पंचम युक्त संयुक्ता ओम मिति तयोतिरो। नमाज पढ़ने का कैटेगरीज बताते हैं श्री कृष्ण जी हनुमान जी को। आओ, हनुमान जी भी नमाज पढ़ा करते थे। गीता खोलो, गीता के अंदर भी लिखा हुआ है। गीता के अंदर के श्री कृष्ण जी भी नमाज पढ़ा करते थे। हवाला मेरे जिम्मे, हवाला मेरे पास। आओ तो सही, डिबेट तो करो, हमसे बात तो करो। हम दिखाने के लिए तो तैयार हैं। हम तुम्हें तलवार और बर्छे और इस तमाम चीज़ों से नहीं कहेंगे कि इस्लाम के अंदर आ जाओ। मेरे भाइयों, मौलाना रफ़ीक का प्यार का संदेश है, प्यार की दावत है। अगर मेरी बात सच लगे तो आओ, आमन्ना व सदकना, मान लो, दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है।
यचित्यो योपिम्मिम्मः नस्तस्मा देवी शोरिरिषा। आए लोगो, किन चीज़ों को मानते हो, किन की इबादत करते हो? ये देवी देवता जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, भक्ति करते हो, यचित्यो योपिम्मिम्मः नस्तस्मा देवी शोरिरिषा। जिस भगवान से तुम मांग रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, ये देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है, कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, कुछ भी तुम्हें दे नहीं सकता है। मेरे हिंदू भाइयों, और रात के 1 बजे मैं तुम्हें एक संदेश देता हूँ, एक बात बताकर तुम्हें जा रहा हूँ, अक्ल में बिठाओ। जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो, जिस मूर्ति को तुम भगवान मान रहे हो, जिसके ऊपर तुम मिठाइयाँ चढ़ाते हो, जिनके ऊपर तुम फूल और बूटे चढ़ाते हो, जिनके लिए तुम सारी कुछ कर डालते हो, वो भगवान के सामने ओम बुद्ध देवता नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा। इदं जना उपसृत नरा शंस अस्तश्विष्यते सहस्तिं सहस्रा नवीतं चकोरम अरुष्मेथु दद्महे। उष्ट्रायस्य परबाहिडो वधुमन्तो द्युदशावर समरसन जिहित दियुस्मान। अश्वमासुमारुहा देवदत्त जगत्पति आसना साधुमनं सडेश्वर गुरुं गितः। लिंगच्छदीन शिकाहीन शरम शुरुधारी शदूषका। उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। मुस्लेन्यो संस्कारा कुशेरुवा भविष्यति जनो मम्मा। अहिंसा सत्यम क्रोधा शांतिरपैशनम दया भूतेश्वरत्वं मार्दमं हृदिच्छापलाम। आस्वामासुगमारुहा देवदत्त जगत्पति आसना साधुग्मनं सडेश्वर गुरुं गितः। इति कलो गत्पराय जनेषु गर्गड़ निर्धर्मत्तरनाय शक्तवेन भगवान त्रिष्यति। मैं वेदों के मंत्र ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मुझे मालूम है कि यहाँ हिंदू भाई यहाँ रह रहे हों या नहीं रह रहे हों, हमें मालूम नहीं है। अगर मैं कुछ और ज़्यादा वेदों के मंत्र पढ़ूँ तो आप लोग कहीं ये ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर ना लगा दें कि मौलाना उस्मान मदनी साहब ये पंडित बुला कर लाए हैं कि मौलवी बुला कर लाए हैं। CBI इनकी जांच कराओ, हो सकता पंडित निकलेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। थोड़ा साउंड बढ़ाइएगा भाई। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी उस वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात और मालिके अर्ज़ समा के लिए लायक और सजावार है, जो रब्बुल आलमीन है, जो मालिक यौमिद्दीन है, जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हम उस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि लाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलअमूम और बिलख़ुसूस इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रात का तकरीबन 12:30 बज रहा है, 1:15 होने चला है और आप तमाम ख़तीबों के खिताब सुनते चले आ रहे हैं। बदकिस्मती यही है हम लोगों की है कि लास्ट में हमें धकेला जाता है और हर जगह ही लास्ट में नंबर मिलता है। ऐसे टाइम में हम लोगों को टाइम दिया जाता है इस वक्त में कि लोग सो रहे होते हैं। कुछ तो यहाँ तक लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि मौलाना साहब बोले कि प्याज खाना हराम है, तो लोग बोलते हैं कि प्याज खाना हराम है। ये वक्त, ये टाइम ही ऐसा है कि बिल्कुल नींद की जो तारीफ होती है वो इंसानों के ऊपर गालिब आ चुकी होती है। वेदों के मंत्र सुनना हो तो हमें उस वक्त टाइम दीजिए जब हमारे हिंदू भाई इलाके के कुर्बजवार में रहते हों, उनके कानों तक आवाज़ पहुंच रही होती हो, उस टाइम में हमें टाइम दिया जाए तो कुछ संदेश उस तक भी पहुंचे ताकि वो भी सीखे और देखे कि हमारे ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है।
لیکن ابھی تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں بھی سو رہی ہوں گی. آپ خود سو رہے ہیں تو وہ قوم کیا جاگ رہی ہوگی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اس وقت جو دیش کا صورتحال ہے اور جن حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، کبھی ہمارے اسلام کے اوپر آبجیکشن، کبھی قرآن کے اوپر آبجیکشن، کبھی مسلمانوں کو دھرم پریورتن کی آبجیکشن، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے سبتے میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں پولیٹیکلس میں نہیں ہوں اور نہ ہی میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جانکاری آپ کو ہونا ضروری ہے، ہمیں جانکاری ہونا ضروری ہے. ہم کس کے ہاتھ میں یہ ملک دے دیا ہے، کس کے ہاتھ میں سونپ دیے ہیں، جو آج کبھی نوٹ بندی کی بات کرتا ہے، کبھی GST کی بات کرتا ہے، کبھی مسلمانوں کی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، کبھی مسلمانوں کے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. مسلمانوں ابھی بھی ضرورت ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی، اپنے آپ کو اس راہ پر لانے کی اور سوچنے کی اور سمجھنے کی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمارے سامنے کون سی چیزیں آ رہی ہیں. آج حجاب کے معاملے میں دیکھ لیجئے، آج اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یہ قانون اور یہ چیزیں نافذ کی جا رہی ہیں کہ غیر مسلم لڑکیاں جس حساب سے آتے ہیں کالج پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی پڑھنے کے لیے، اسی طریقے سے مسلم لڑکیاں بھی آئیں. اور ایک پلاننگ کیا بن چکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لڑکیوں کو، یعنی مسلم لڑکیوں کے لیے ایڈمیشن کھلا ہوا ہے، ان کے لیے سیٹ اویلیبل ہے. ان لڑکیوں کو لاؤ اور ہمارے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بٹھا کر پڑھاؤ، پھر ان کے ساتھ یہ پھر ہوگا، لو میرج چلے گی، اور پھر ان کے اندر سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے شادیاں کی جائے گی، اور ان کی نسل سے جو بچے پیدا ہوں گے، 2-4 ہوں گے، اس کے بعد اس کو ہم طلاق دے دیں گے. یہ پلاننگیں ہو رہی ہے. آج تم اسلام کو بدلنے کی بات کرتے ہو، آج قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو ریووک کرنے کی بات کرتے ہو، مسجدوں میں تالے لگانے کی بات کرتے ہو، مدرسوں کے اندر تالے لگانے کی بات کرتے ہو. آؤ جس اسلام کو تم مٹانا چاہتے ہو تمہارے گرنتھوں سے ثابت کرے گا مولانا رفیق. تمہارے کان ہے تو سنو، چھمتا ہے برداشت کرنے کی کرو، نہیں ہے تو اپنی کتاب کو آگ لگاؤ. میرے بھائیوں تمہاری کتابوں سے بتلا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ طریقہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور پروف میں دوں گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام کے اندر یا مدرسوں میں پڑھنے والے بچے 2-4 حدیثیں یا قرآن کے آیتیں پڑھ لیتے بس ہو گیا؟ یہ تمہاری دماغوں کی گندگی صاف کرو. مدرسے کے بچے کہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں؟ شاید جتنا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دھرم کے گرنتھ کتنے ہیں، ہمارے دھرم کے کتنے گرنتھ ہیں، کتنے ٹیکسٹ بک اور کون سا ہے، شاید تمہیں نہیں معلوم لیکن ہمیں معلوم ہے. میں بتاؤں، گن لیجیے، رگ وید، یجروید، اتھر وید، شام وید، بھاگوت پران، کلکی پران، بھوشیہ پران، رامائن، مہا بھارت، سری رام چرت مانس، اللو پریشد، 18واں پران، شیو پران، گریش پران، وشنو پران، کنٹپ سکتا، شیتا شوتر اپنشد، چھندوگیہ اپنشد، یہ تمام کتابیں ہیں. اور ان تمام کتابوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. آئیے ایک ایک وید پڑھتا چلوں گا اور دکھاتا چلوں گا کہ دیکھیے کہ اسلام کے بجائے غیر مسلموں کے دھرموں کے جو گرنتھ ہیں ان گرنتھوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن چیزوں کا رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے حبیب کے بارے میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے محمد الرسول اللہ کی اصلی تصویر بتاتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے، ہم نے تمہیں جو پیغمبر دیا ہے، ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے، وہ رسول کون ہے پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان جو رسول بھیج چکے ہیں، جو تمہارے اندر جو رسول آ چکے ہیں، جو تمہارے اندر وہ محمد و
रसूल आ चुके हैं वो तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हमने आपको रहमत बना कर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए लोगों, तुम्हारे दरमियान जो रसूल आ चुके हैं वो सारे लोगों के लिए रहमत बनकर के आए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 9। नरासन श्रीकृष्णम अफसम सरबत समम। नरासन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों को बचाने वाले, सबको एक नज़र से देखने वाले होंगे। क्या ये वेद के मंत्र हमारी कुरान की तस्दीक कर रही है कि नहीं कर रही है? अल्लाह फरमाता है कि हमने जो रसूल भेजा है, तुम्हारे दरमियान जो रसूल आ चुके हैं वो रसूल तमाम लोगों के लिए रहमत बन करके आए हैं। नरासन श्रीकृष्णम अफसम सरबत समम। नरासन नर मने आदमी, आसंस जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए, जिसका बहुत ज़्यादा नाम लिया जाए। आज दुनियावी सतह पर देख लीजिए, अल्लाह के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। हमारी आज़ान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न कह लिया जाए, तब तक हमारी आज़ान मुकम्मल नहीं होती। यानी अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। अगर अल्लाह के बाद किसी और शख्सियत का नाम लिया जाता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। जिसको मोहम्मद के नाम से याद किया जाता है, मोहम्मद का माना होता है, मोहम्मद का अर्थ होता है, मोहम्मद की मीनिंग होती है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए। नरासंस का भी वही माना होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। दो चीज़ें हो गई। आइए, जब अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमीन पर तशरीफ़ लाए तो मेरे भाइयों, यकीन जानिए कि वो लोग जो पहले थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जो अपनी बेटियों को गाड़ दिया करते थे, अपने बेटियों को मार डाला करते थे, अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे। आज तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, वो सर्वोच्च पद पर विराजमान मोदी जी, तुम तो रड़वे हो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी न बीबी है न बच्चे हैं, तुम तो कुछ नहीं हो, रड़वे हो, तुम्हारी तो औलाद ही नहीं है, तो औलाद की मोहब्बत कहाँ से आएगी? मौलवी रफीक से पूछो जिनकी औलाद है, उनसे पूछो कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। मेरे भाइयों, आज तुम प्लेटफॉर्मों पर, शॉपिंग मॉल पर, गाड़ियों पर, तमाम जगहों पर तुमने लिख रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, क्रोम का ज़माना है। रिसर्च करो मेरे भाइयों, आज रिसर्च किया जाता है तो हर 3 मिनट पर एक लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, हर एक बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, हर एक बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता है। मेरे भाइयों, आज तुम्हारा नारा कहाँ चला गया है मोदी जी? आओ हमसे रेफरेंस ले लो, हमसे हवाले ले लो, हम हवाला देने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, तुम ये कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन तुम्हारी रिसर्च के मुताबिक, तुम्हारी इंटरनेट के मुताबिक अगर मैं रिसर्च करता हूँ तो हर 3 मिनट पर लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, लड़कियों की इज्जत से खेला जाता है, लड़कियों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। आज तुम इस्लाम को मिटाने के दर पे हो, आज तुम्हारे कार्यकर्ता, तुम्हारे चेले और चमचे इस्लाम को मिटाने के दर पर है। मेरे भाइयों, आओ मैं बताता हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह के प्यारे हबीब की तालीमात बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने बेटियों को कैसे बचाया, बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ करता था, जो घिनौनी माहौल बेटियों के साथ थी, बेटियों के साथ वो घिनौनी खेल खेला जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मिटाया है। जब अल्लाह के प्यारे हबीब मक्का की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, बेटियों को मार डाला करते थे, बेटियों को दफन कर दिया करते थे। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर क्यों कर रहे हो? आए लोगों इस बेटियों को जिंदा ज़मीन के अंदर दफन क्यों करते हो? आए मेरे भाई, ये तुम्हारी बेटी क्या गलती कर बैठी है, क्या बिगाड़ दिया तुम्हारी इन बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हो। वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। आए मेरे भाई, एक जिंदा गाड़ी हुई लड़की से अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा, ये लड़की अल्लाह से सवाल करेगी, आए अल्लाह ये जालिम मेरा बाप था जिन्होंने दुनिया में मुझे जीने का हक नहीं दिया, आए अल्लाह ये मेरा मनहूस बाप था जिसने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया था, आए अल्लाह ये मेरा बाप है जिसने
ने दुनिया में मुझे जीने का हक नहीं दिया था। आय अल्लाह आज तो इनका मत सुनना, आय अल्लाह इनको जहन्नम रसीद कर दो, इन्हें जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम घिनौनी गलाजतर गंदगी को पाक साफ किया है। इथकलो गत्राए जनेसु गरगड़ मेरे धर्म तरनाए शतवेद भगवान त्रिशयति, भगवान का एक अवतार आएगा, वो अवतार कब आएंगे, उनका टाइम क्या होगा। आइए वेद हमें कह रहा है, वेद हमें बताता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम क्या होगा, अल्लाह के रसूल किस वक्त आएंगे। जब माहौल घिनौनी होंगी, लोग एक ईश्वर को छोड़ करके दूसरे ईश्वरों को यानी गैर चीज़ों की इबादत करने वाले होंगे, वो लोग अल्लाह को भूल जाएंगे, अपने बाप दादाओं की इबादत करने वाले होंगे। इस घिनौने माहौल में अल्लाह तबारक व तआला एक ऋषि भेजेगा, एक नबी भेजेगा, एक पैगंबर भेजेगा। इत्थकलो गत्राय जनेसु गरगड़ मिर धर्म तरणाय शतवेद भगवान त्रिशयति। भागवत पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 27 उठाओ और देख लो कि ये मंत्र मौजूद है या नहीं है। रेफरेंस में मेरे पास मौलवी रफीक रेफरेंस देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों आओ तुम्हारी किताबें खोलो और देख लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए। तुम तो कह रहे हो कि वेद 2000 साल पहले छापी है, इनको प्रेस में डाला गया है, छपकर तैयार हुआ है। मेरे भाइयों, वेदों के ज्ञानी, वेदों के लिखने वाले जिन्होंने वेदों को छापा है, उनके जहनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कैसे ये बात डाल दे कि मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा, उसका नाम नरासंस होगा, उनका नाम कल्की होगा, उनका नाम उन्मा होगा, उनका नाम नरासंस होगा। जिन्होंने वेदों के अंदर जिक्र किया है, इत्थकलोग प्राय जनेसु गरगड़बीर धर्म त्राणाय शतवेन भगवान त्रिशयति। जब लोग गधे और जानवरों की तरह हो जाएंगे, लोग किताबों को फॉलो नहीं करेंगे, किताबों को शास्त्र की विधि के मुताबिक नहीं चलेंगे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर जो है नबी भेजेगा, अवतार भेजेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कौन सा अंधेरा है था मक्का के अंदर? लोग खुलेआम शराब पीते थे, खुलेआम, जैसे आजकल पी जाती है। लोग पीते हैं, शराबी शराब पी कर आता है और नाली के अंदर पड़े रहता है। नालियों में देखते होंगे आप, शराबी शराब पी करके आया और नाली के अंदर पड़ करके वो नाली की जो पानी होती है, बदबूदार पानी, वो पीता है जबान से, और ये सोच रहा है कि हम समझ पी रहे हैं। शराबी है ना, शराबी की अकल छिप जाती है, उनका काम ही नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है। शराबी सोचता है कि ये नाली, ये गंदी पानी जो है, ये जमजम है मक्का मदीना का, उसको लोग वो पी रहे होते हैं। इस शराब हमारे नस्ल को तबाह कर दी है, हमारे नौजवानों की नस्ल को ये शराब जो है तबाह कर डाली है। मेरे भाइयों, आज नौजवान भी शराब पीता है। अगर सबसे ज़्यादा शराब के अड्डों में देखा जाता है तो हमारा मुस्लिम नौजवान देखा जाता है। मेरे भाइयों, ये लोग नज़र आते हैं। मेरे भाइयों, ये शराब आपको कहाँ तक पहुँचाता है? आइए मैं बताता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या। शराब हलाल थी, हराम नहीं हुई थी, लोग शौक़ से पीते थे। पानी की जगह पर दस्तरखान पर शराब हुआ करता था। एक सहाबी शराब पी कर के आया, शराब के नशे में इतना धुत था कि वो डिसाइड नहीं कर पाया कि ये मेरी बेटी है या मेरी बीबी है, और बजाय बीबी को बेटी को पकड़ बैठा। जिसको देखना हो मुस्नद अहमद के हवाले देख सकता है। কোনো ভাই বন্ধুর যদি দরকার থাকে কাঁচা গোস 200 গোস বেচা আছে 220 টাকা কিলো দিবে, চাই একড়াবাসী হোক কিংবা কোনো গ্রামের হোক, যদি আপনারা চাই ইচ্ছুক থাকেন কিনে নেবেন তো আপনারা নিতে পারেন। तो मेरे भाइयों, मैं कह ही रहा था कि शराब उस वक्त हलाल थी, हराम नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल के ज़माने में अल्लाह के रसूल मौजूद, लेकिन शराब अभी भी हलाल है, हराम नहीं हुई है। मुस्नद अहमद के अंदर यह वाक़या मनक़ूल है। वो सहाबी शराब पी कर के आया, शराब के नशे में अपनी बीवी और बेटी में फ़र्क नहीं कर पाया, अपनी बेटी को पकड़ बैठा। बीवी देख रही है कि मेरा शौहर शराब के नशे में अपनी बेटी को पकड़ बैठा, जल्दी से दौड़ती हुई गई और अपनी बेटी से शौहर से बेटी को छुड़ाया और फिर अपने शौहर को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से छिटकली मार दी। जब सुबह पी ली शराब, जब शाम को उसका शौहर का नशा उतरा, उनका शौहर घर दरवाज़ा खटखटाया, बीवी दरवाज़ा खोलती है। अब वो शराबी अपने पैर से जूता निकाला और अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। जब पूरी तरीके से पीट लिया तो बीवी कहती है, आए मेरे शौहर, क्या अभी भी आपको मारना है? क्या आप मार चुके हैं? क्या मुझे अभी भी मारनी है?
वो शौहर कहता है कि मेरी बीवी, हमें तो तुझे जितना मारना था मैं मार लिया, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था? कहती है मेरे शौहर, आपने शराब पी ली थी। कहा वो तो मैं रोज़ पीता हूँ, ये तो हमारा मामूल है, मैं तो ये रोज़ पीता हूँ। अरे मेरी बीबी, शराब तो मैं रोज़ाना पी कर आता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया? वो कहने लगी मेरे शौहर, आप आज बहुत ज़्यादा शराब पी कर के आए थे। कहा तो वो क्या हो गया? वो पैसे के हिसाब से होता है, मेरा पैसा कभी कम होता है तो मैं कम पीता हूँ, कभी ज़्यादा पैसा होता है, जब हमारे पास पैसों का अंबार होता है तो मैं ज़्यादा पी कर आता हूँ, अपने दोस्तों को पिलाता हूँ। मेरे भाइयों, उसकी बीवी कहती है आए मेरे शौहर, आज आप बहुत ज़्यादा शराब पी कर के आए थे, और बेटी और बीवी में फ़र्क करने के बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कमरे के अंदर ले जा रहे थे। आए मेरे शौहर, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचती तो बेटी की इज्जत तार तार हो जाती, बेटियों की इज्जत से आप खेल लेते, बेटी की इज्जत तार तार हो जाती। कहने लगे बस कर मेरी बीवी, बस कर। आए मेरी बीवी, क्या ये वाकया सही है? मैं अपनी बेटी को पकड़ बैठा था। कहने लगी हाँ, मैं वहाँ वक्त पर मौजूद थी, आपने बेटी का हाथ पकड़ लिया। आए मेरे शौहर, अगर मैं नहीं होती तो बेटी की इज्जत आप तार तार कर देते। कहने लगे आए मेरी बीवी, मैं तुझे यहाँ गवाह बनाता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर व नाजिर मान कर कहता हूँ, आए अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूँगा शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, शराब नहीं पीऊँगा। आए अल्लाह, मैं कौन सा चेहरा ले जाकर अपनी बेटी के सामने लेकर जाऊँगा? आए अल्लाह, कौन सा चेहरा दिखाऊँगा कि मैं तेरा बाप हूँ और तुझे पकड़ा था? मेरे भाइयों, ये लोग शराबों का खमियाजा देखने के बाद लोग शराब को छोड़ दिया करते थे। आज हमारे नौजवान पार्टी शराब का खमियाजा देखने के बाद, शराब के नुकसान देखने के बाद फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। क्या इंटरेस्ट है? क्या आपको मज़ा मिलता है? मेरे भाइयों, शराबखोरी जिस घर के अंदर होगी, शराब से नस्ल तबाह हो जाती है, आपकी नस्ल तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, आपकी जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, बीवियों को आप खुश नहीं कर पाते हैं, बीवियों के अंदर से जो बच्चे आने वाले होते हैं वो नहीं आ पाता है। ये हमारे माशरे समाज को खोखला करने वाली है, ये हमारी नस्लों को मिटाने वाली है। नौजवानों, तौबा करो आज से। जो शराब पीते हो, जो गांजा पीते हो, जो चर्च वगैरह इस्तेमाल करते हो, अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर व नाजिर मान कर छोड़ दो। तौबा करो, तौबा करो, तुम्हारी गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट कर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। आपको मालूम नहीं था, मालूम हो चुका है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आप शराब को छोड़ दीजिए। शराब से हमारी नस्लें तबाह हो जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाक़या जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बारात में आयत नाजिल करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। आज लोग पूछते हैं मौलाना साहब, खैनी खाना कैसा है? मैं एक बार सफ़र कर रहा था, मैं झारखंड की तरफ जा रहा था प्रोग्राम में, तो ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हुआ सीट पे अपने, एक आदमी कह रहा है कि मौलाना साहब, वो तो मौलाना हमें समझ ही नहीं रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग हमें नहीं समझ पाते हैं कि मौलवी साहब हैं। कहने लगे बेटा एक बात बताओ, कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा कि मैं फारिग हो चुका हूँ, 2018 को हमारी फरागत हो चुकी है। तो कहा कि बेटा एक बात बताओ, बीड़ी पीना कैसा है? हमने कहा हराम है। हाँ, आप कैसे कह रहे हो कि हराम है? अरे बड़े बड़े मौलवियों को देखता हूँ, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, खैनी खाते हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है, अब वो मौलवी पर तो शरीयत नहीं उतरी है भाई, शरीयत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज़ हराम है, जिससे नशा जाए वो चीज़ हराम है। हराम है तो हराम है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहने लगे नहीं आपको जानकारी नहीं है। हमने कहा अच्छा, तो आप ही बता दो। तो कहा कि एक दुआ मैं जानता हूँ बीड़ी पीने का। मैंने कहा बताओ तो। कहा कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी है बीड़ी टाना। मैंने कहा अच्छा, बंगाली था, बंगाली, वो ये दुआ पढ़ के सुनाता। हमने कहा कि भाई बताओ ये कौन सी हदीस में है? बुखारी में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में, मुस्लिम में, किस में है? कुरान में है? कहा कि नहीं, ये हमारे मौलवी साहब बताए हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी है बीड़ी टाना। मैंने कहा वाह, बाहर दिमाग। तो मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। फिर हमारे हनफी भाई क्या फतवा देते हैं कि तंबाकू जो है ये हमारे यहाँ मकरूह है, हम पीते हैं। अभी 25-30 दिन पहले एक आदमी से मैं मिला, मौलवी साहब है, टोपी टापा लगाए, मैं तो सैंपल था भाई, टोपी लगाए हुए, तो मैं देख रहा हूँ कि वो खैनी लटाकर खा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा मौलाना बताओ
ये खैनी खाना कैसा है? मैं उससे उल्टा सवाल किया, खैनी खाना कैसा है बताओ तो? कहा कि मौलाना साहब हमारे यहाँ मकरूह है। हमने कहा अच्छा मकरूह है, कौन सी कभी हदीस की किताबों में जरा दिखाओ। कहा नहीं हमारे जो हमारे ये है ना जमात, हमारी गिरोह, ये फतवा देते हैं ये लोग कि मकरूह है, खा सकते हैं। मैंने कहा जब तुम मकरूह का फतवा देते हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कहाँ डालोगे? कूड़ेदान में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु मुश्किरिन हरामुन व कुल्लु मुश्किरिन हराम, हर नसावर चीज हराम है जिससे नशा जाए। मेरे भाइयों, एक हदीस काफ़ी है हमारे लिए, एक दलील काफ़ी है। तो 2 घंटे की तकरीर सुनने से क्या फ़ायदा, एक दलील काफ़ी हुआ करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को दीन की बातें सिखा रहे हैं, दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ कर सुना रहे हैं। वहाँ पर कुरान की आयतें पढ़ते पढ़ते एक आयत आ जाती है, मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कर्ज हसना दे दे। कर्ज हसना होता है ना, हम लोग कर्ज लेते हैं, एक आदमी से दूसरा आदमी से, एक दूसरा आदमी कर्ज लेता है। मौलाना रफ़ीक किसी को दिए हैं 10,000 कर्ज, वो फिर हमें लौटाते हैं, ये कर्ज होता है। आप दिए हम लिए, हम दिया आप लिए। तो वहाँ पर सहाबा किराम कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह तो सबको खिलाता है, वो तो खुद खाता नहीं है। अल्लाह तो सबको देता है, अल्लाह को कर्ज की क्या ज़रूरत है? अल्लाह को कर्ज की ज़रूरत है? अल्लाह तो संपूर्ण जगत को पैदा किया है, संपूर्ण मानवगत को, तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला खिलाता है, तो अल्लाह को कब कर्ज की ज़रूरत पड़ती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह को वो कर्ज की ज़रूरत नहीं है जो आप उसे इनडायरेक्ट दे। डायरेक्ट दे, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट दे, जिसे हम लोग एक दूसरे आदमी को देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे साहबी, आए मेरे दोस्त, आप जिस कर्ज के बारे में सोच रहे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज देना नहीं है। कर्ज का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में आप खर्च करो, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाओ, यतीम बच्चे हैं उनको पढ़ाओ लिखाओ, यतीम बच्चों की परवरिश करो, यतीम बच्चों को खिलाओ, मस्जिदें बन रही हो उसमें आप डोनेट करो, मदरसे चालू है, मौलाना उस्मान मदनी का मदरसा है, आप उसमें डोनेट करो। ये अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज देना है, अल्लाह इसके बदले में तुम्हें जन्नत देगा। वहीं पर हज़रत अबू दरदा नाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम का एक सहाबी वहीं पर बैठे हुए थे, कहने लगे अरे अल्लाह के रसूल, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज दूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अल्लाह को कर्ज दोगे अल्लाह उसके बदले में जन्नत देगा। कहने लगे आए अल्लाह के रसूल, मदीने के ऊपरी वाले बाग, यानी मदीने में मेरा 2 बाग है, एक ऊपरी वाले, एक नीचे में, एक ऊपर में, आए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह तबारक व तआला को दोनों बाग कर्ज हसना देने के लिए तैयार, मैं अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज हसना दे दूंगा। दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे भाई, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला को दोनों बाग कर्ज हसना दे दोगे, अल्लाह को कर्ज दोगे, तो फिर तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे करोगे, उसको कैसे पालोगे? मेरे भाइयों, वो सहाबी कहते हैं, वो दरदा कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, जंगलों में जाऊंगा, लकड़ियाँ चुन लूंगा, लकड़ियाँ काट कर बाजार में फरोख्त करके मैं अपनी बीवी बाल बच्चों का पेट भर लूंगा। आए अल्लाह के रसूल, मैं दोनों बाग अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज हसना देता हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे भाई, एक बाग अपने पास रखो, दूसरा बाग अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो कर्ज अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह तबारक व तआला को वो कर्ज पसंद है जो आपके दिल के करीब हो, जिससे आप ज़्यादा मोहब्बत करते हो, वो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। हज़रत अबू दरदा कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मदीने के ऊपरी वाली बाग में मैं बहुत ज़्यादा जाया करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उसमें जाया करता हूँ, अपना टाइम सर्व करता हूँ। आए अल्लाह के रसूल, वो बाग में अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज हसना दे दिया हूँ। अब कर्ज देने के बाद अब वहाँ से अपने घर की तरफ दौड़ लगाते हैं। जैसे अपने घर में पहुँचे, देखा दरवाजे में ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा लॉक है, दरवाज़ा बंद है, बीवी बाल बच्चे मेरे घर में नहीं है। पड़ोसी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई है, मेरे बच्चे कहाँ गए हैं? पड़ोसियों ने कहा क्या है मेरे भाई, तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे मदीने के ऊपरी वाले बाग में गए हैं अपने बच्चों का खजूर खिलाने के लिए। अब हजरत अबू दरदा वहाँ से दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाकर
मदीने के ऊपरी वाले बाग के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और चीख कर कहते हैं, आए मेरी बीबी, आए मेरे बच्चे, जल्दी इस बाग को खाली करो, ये बाग मेरा नहीं है, ये बाग मेरा नहीं है, ये बाग को खाली करो, ये बाग मेरा नहीं है। बीबी चौंक जाती है कि मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, ये बाग किसने हदिया कर लिया है, किसने कब्जा कर लिया है, किसने गजब कर लिया है। आए मेरे शौहर, ये तो मेरा बाग है जिसमें आज मैं आई हूँ अपने बच्चों को लेकर के। आए मेरे शौहर, किसने हदिया लिया, किसने कब्जा कर लिया है, किसने गजब कर लिया है। शौहर कहता है, अबू दरदा कहते हैं, आए मेरी बीबी, रीज़न बाद में पूछना, जब जल्दी से अपने बच्चों को खींचो और अपने बाहर लेकर आओ। मेरे भाइयों, बीबी अल्लाह वाली थी, जैसे ही शौहर का परमिशन मिलता है अपने बच्चों को खींचकर बाहर निकाल लेती है। बाहर निकालने के बाद मदीने के ऊपरी वाले बाग के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और कहती है, आए मेरे शौहर, रीज़न बताओ कि ये बाग किसने हदिया लिया है, किसने गजब कर लिया है, किसने कब्जा कर लिया है। कहता है, मेरी बीबी, ये बाग किसी ने कब्जा नहीं किया है, किसी ने गजब नहीं किया है। आए मेरी बीबी, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज देता है अल्लाह उसके बदले में जन्नत देगा। बीबी कहती है, आए मेरे शौहर, क्या ये सही बात है? कहने लगे कि हाँ, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो कर्ज देगा अल्लाह उसके बदले में जन्नत देगा। मेरे भाइयों, बीबी कहती है कि मेरे शौहर, एक ही बाग दियो कि दोनों बाग दे दियो? कहता है, मेरी बीबी, एक बाग दिया हूँ, एक बाग। कहने लगी, अच्छा, अरे दोनों बाग दे देते, ये हमारा पेट का मामला था, बच्चों का मामला था, घर बार का मामला था, तो मैं जंगल में जाती, लकड़ियाँ चुन कर लाती, बाजार में फरोख्त कर करके अपने बच्चों और अपने खुद का पेट भर लेती। अल्लाह मेरे शौहर, दोनों बाग तुमने क्यों नहीं दे दिया? कहता है, मेरी बीबी, मैंने दोनों बाग देने की बात की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बाग अपने पास रखो, दूसरी बाग दे दो। तो मेरे भाइयों, ये थी औरतें। आज हमारे माँ और बहनों से चीख चीख कर कहा जाता है कि तुम नाकिस हो, तुम्हारी अकल कमज़ोर है, आधे यानी मर्द के बिलमुकाबिल आधी है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा जहन्नमों के अंदर जलता हुआ देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, वहाँ नबी सईदना खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अज़हा फितरिन इलल मुसल्ला फमर्रा अला निसा या मासर निसाई तसद्दक़ना फइन्नी उरीदुकुन अक्सर अहलिन नार। औरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत ज़्यादा जहन्नम के अंदर जलते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों ने सवाल किया, कुल्ला बिमा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, औरतें आखिर जहन्नम के अंदर क्यों जल रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुकफिर लनान व तकफिरन लशीर, तुम अपने शौहरों की ज़्यादा नाफरमानी करती हो। मेरे भाइयों, वो थी औरतें, वो थी जन्नती औरतें जो एक बाग अगर शौहर दे देता है तो उसको सपोर्ट करती है कि दोनों बाग आपने क्यों नहीं दे दिया। मेरे भाइयों, मीडिया वालों, अगर तुम यहाँ हो तो मेरी बात पहुँचाओ मोदी और योगी तक, जिसको तुम टेररिस्ट के अंदर जोड़ते हो, जिसे दहशतगर्द कहते हो। अल्लाह के रसूल की एक बात है, लोग उसके ऊपर आमन्ना और सदका कबूल कर लिया करते थे। तुम्हारी हज़ारों बातें हो जाती है, कभी तो 15 लाख हर अकाउंट में, कभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कभी तो फलां को बंद कर दो, कभी तो उसको गोली मारो, कभी तो बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला। ये तुम्हारी कौन सी दोगली और पॉलिसी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो कि हुकूमत कैसे चलाई जाए, हज़रत उमर फारूक से सीखो कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, कैसे चलाया जाता है हुकूमत। अल्लाह के रसूल से हज़रत उमर फारूक से पूछो। आओ मैं बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी बनाया, आखिरी लीडर बनाया, तो सबसे पहले क्या कहा कि लोगों, मोहम्मद जाकर के लोगों से कह दो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। अशहदु अल्लाह के गवाही दे दे, शहादत की गवाही दे दे, वो कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इक़ामिस सलाह, नमाज़ पढ़िए, व इक़ामिस सलाह। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम का बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज़ व इक़ामिस सलाह, तीसरी चीज़ व इताई ज़कात, चौथी चीज़ वो तो सौम रमज़ान, पाँचवीं चीज़ मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आपके पास ताकत है तो ज़िंदगी में एक बार हज करना है। आइए महाभारत उठाइए, महाभारत के अंदर ये मंत्र आपको मिलेगा, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीज़ों का नाम है। पृथ्वी वस्तु पहली चीज़, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय दूसरी चीज़, द्वितीय वस्तु साष्टांग तपदिया, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु धारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा का तपदिया।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम का बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। पहली चीज़ एक अल्लाह की गवाही देना, दूसरी चीज़ नमाज़ पढ़ना, तीसरी चीज़ रोज़ा रखना, चौथी चीज़ दान और खैरात करना और 5वीं चीज़ हज करना। यहाँ क्या कहा गया है? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म भी 5 चीज़ों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज़ एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन। दूसरी चीज़ साष्टांग तब्दिया। तीसरी चीज़ दानम दीक्षिता। चौथी चीज़ चतुर्थ वस्तुधारी। 5वीं चीज़ पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा का तब्दिया। मेरे भाइयों, यह हदीस, हमारी यह हदीस तुम्हारे वेदों के अंदर मौजूद है। महाभारत खोलो, देख लो, ये मंत्र नुमाया तौर पर नजर आएगी। अभी भी लिखा हुआ है, आज भी उसको रिमूव नहीं किया गया है। प्रथमा दारका झुआ देव द्वितीयन मुझियते तृतीयानन कोडलाकारम चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम युक्तो संयुक्ता ओम मिति तयोतिरो। नमाज पढ़ने का कैटेगरीज बताते हैं श्री कृष्ण जी हनुमान जी को। आओ, हनुमान जी भी नमाज पढ़ा करते थे। गीता खोलो, गीता के अंदर भी लिखा हुआ है। गीता के अंदर के श्री कृष्ण जी भी नमाज पढ़ा करते थे। हवाला मेरे जिम्मे, हवाला मेरे पास। आओ तो सही, डिबेट तो करो, हमसे बात तो करो। हम दिखाने के लिए तो तैयार हैं। हम तुम्हें तलवार और बर्छे और इस तमाम चीज़ों से नहीं कहेंगे कि इस्लाम के अंदर आ जाओ। मेरे भाइयों, मौलाना रफ़ीक का प्यार का संदेश है, प्यार की दावत है। अगर मेरी बात सच लगे तो आओ, आमन्ना व सदकना, मान लो, दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। यचित्यो योपिम्मिम्मः नस्तस्मा देवी शोरिरिषा। आए लोगों, किन चीज़ों को मानते हो, किन की इबादत करते हो? ये देवी देवता जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, भक्ति करते हो। यचित्यो योपिम्मिम्मः नस्तस्मा देवी शोरिरिषा। जिस भगवान से तुम मांग रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, ये देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है, कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, कुछ भी तुम्हें दे नहीं सकता है। मेरे हिंदू भाइयों, और रात के 1 बजे मैं तुम्हें एक संदेश देता हूँ, एक बात बताकर तुम्हें जा रहा हूँ। अक्ल में बिठाओ, जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो, जिस मूर्ति को तुम भगवान मान रहे हो, जिसके ऊपर तुम मिठाइयाँ चढ़ाते हो, जिनके ऊपर तुम फूल और बूटे चढ़ाते हो, जिनके लिए तुम सारी कुछ कर डालते हो, वो भगवान के सामने